We have along with us the chair of the session, Professor Kaisar Jamal. He is head of the department and chair of Abbasi Shahid Hospital, KMDC. And he is also chair of the curriculum committee of the KMDC. We welcome Dr. Kaisar Jamal. Our next speaker is Dr. Abdul Shakur. He is ex-consultant Indus Hospital, ex-endocrinologist. Now he is working at NHS UK, and he will be joining us via Zoom. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले I am really grateful for the PIMA team organizers to invite me to be the part of this very important session, and I'm really glad to see that there are PGs, doctors, they're there and they're there to learn about the diabetes. और तीसरी चीज़ ये कि it's really wonderful presentations by Dr. Umar and Dr. Ali, जिन्होंने मेरे लिए चीज़ों को आसान बना दिया है. So the topic which is I was asked to talk about the advancement in the management of diabetes. Obviously, it includes the new medications which are available and also the monitoring system as well. तो सबसे पहले वर्ल्ड डायबिटीज डे जो हम मनाते हैं, इसकी मेन जो इम्पोर्टेंस ये है कि वी सेलिब्रेट बेसिकली द बर्थ डे ऑफ द फ्रेडरिक पेंटिंग. ही डिस्कवर्ड द इंसुलिन इन 1922 और अभी 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है. और जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ या मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें यही बात आती है कि जनाब मेडिसिन बहुत कॉस्टली हैं और इंसुलिन की अवेलेबिलिटी का हमेशा इशू भी रहता है. तो व्हाट आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं डायबिटीज़ को, रियली दे आर डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब, क्योंकि इन तमाम कॉन्स्टेंट्स के बावजूद इनको मैनेज करना रियली इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी चैलेंजिंग. आई रियली प्रेज ऑल ऑफ देम. The other thing about this World Diabetes Day 2024, and as you already know, कि इस साल की थीम जो है वो है Breaking Barriers and Bridging Gaps. So the goal of this year, obviously, the theme breaking barriers, bridging gaps, and uniting, strengthening the diabetes well-being. So the goal of this year event is to highlight really the challenges that millions of the people face around the world when it comes to their diabetes diagnosis and obviously the management. So I think ये बहुत ही important I think a theme है, क्योंकि we understand कि the management in the Western world and the management in the third world countries is really a lot of a difference, क्योंकि वहाँ चीज़ें आती हैं, गाइडलाइंस बनती हैं and they being treated accordingly. But unfortunately हमारे यहाँ मुल्क में या और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, the most challenge is the cost of the medications. And मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट अभी बढ़ चुकी होगी. और जब मैंने 3 साल अपने इंडस हॉस्पिटल में अपने सर्व किया है, मैंने इंडस हॉस्पिटल को डायबिटीज़ एंडोक्राइन में, I really had a very good clear ideas that it is really difficult for a normal, even the middle class, something to get a proper and good medications, like we talk about the GLP-1 analogs or maybe the glucose monitoring system and CGM. लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो it's not easy, but it does not mean we should not learn. We need to learn what's been happening all over the world. We need to know what are the latest guidelines are there. We need to know what are the new medications are coming. And it's very important to keep ourselves, abreast with the latest development. तो दो चीजें जो हैं physicians को हमेशा जरूरी हैं और उनको पता होना चाहिए. And this is the importance for our medical councils. Number one, you need to be a safe physician. अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम्स है मेडिकेशन लिखने में या कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही है,
please consult your colleagues, consult your seniors, and be safe for the patient. ठीक है? और second चीज है, you need to update yourself. ये दो चीजें अगर आपके अंदर हैं, definitely you can be a good physician. So I was just starting the management. I'm in the latest management in the diabetes. So I would just like to give you a few things about the glucose monitoring system. So I think you all know कि हम normal जो conventional glucose monitoring हम जो करते हैं, finger testing करते हैं, और साथ ही साथ अभी जो उनको हम कहते हैं मॉनिटर करें, इवन मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रिप्स की प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है. तो कभी पेशेंट्स को कहते हैं कि जनाब आप 2 से 3 दफ़ा मॉनिटर करें, और स्पेशली जो लोग इंसुलिन पे हैं, टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटिक जो इंसुलिन पे हैं, ऑब्वियसली दे नीड टू मेजर द ब्लड शुगर्स, एंड आई नो इट्स रियली अ चैलेंजिंग थिंग. तो लेकिन बहरहाल हमें प्रॉपर एडवाइस करनी चाहिए. डॉक्टर जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे कि वी नीड टू एडवाइस, and many people they can afford it, or maybe they can organize something. तो जिसको जो जरूरी है उसको आपको एडवाइस करें, और obviously if they can't manage it, you always think an alternate safer way for that. So I think there is a paradigm shift in the management of diabetes. So regarding type 2 diabetes, changes in the treatment paradigms observed from the glucocentric approach to a multi-task strategy, and finally in people at high risk to a specific cardiorenal protection using the new antidiabetic agents. And I think Dr. Ali has revealed nicely about the cardiac protection things. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इट इज द की. बहुत इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई थिंक अवेलेबल, लेकिन इन चीज़ों को जितने भी पीजीज हैं या जो फिजिशियंस मैनेज कर रहे हैं डायबिटीज़ को, इनके जहन में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. तो आप हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ पहले ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच थी, लेकिन अभी मल्टी रिस्क स्ट्रेटजीज भी है और कार्डियोरीनल प्रोटेक्शन है. इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इसके साथ साथ जो न्यू इंसुलिन एनालॉग्स हैं उनके जहन में, उसको भी जहन में रखना चाहिए जो एफोर्ड कर सकते हैं. कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एडीए ने पिछले चंद सालों से इसको बहुत हाईलाइट किया है कि we need to have a proper glucose monitoring system that would definitely impact a proper glucose management. Or advanced pump technology. I know the pump is so costly in Pakistan. I think maybe price in lakhs or millions बहुत ज़्यादा cost है. लेकिन बहरहाल हमें चीज़ों का जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में, दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, और जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या एडवांसमेंट हुई है. और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्रॉनिक केयर मॉडल है, जो जिसको हम शेयर्ड केयर मॉडल कहते हैं. देखिए आप हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, जाहिर बात है. अगर आप कराची में हैं, आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में हैं, यू कांट रीच एवरीवेयर, यू नो. तो इसलिए अब टेली क्लिनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जो स्पेशलाइज सर्विसेज एक जगह हो, जो दूसरी जगह पे इनको बताया जाए, और जो छोटी सिटीज हैं, टाउन्स हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों से बेनिफिट वो हासिल कर सकें. एक जो चीज है वो मैं बताना चाहता हूं. आई वुड पहले सबसे मैंने पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू हु आर देयर, इफ यू कैन रेज देयर हैंड्स एंड से इफ दे नो अबाउट टाइम इन रेंज. जो वहां पे जो भी ऑडियंस है, कैन दे रेज देयर हैंड एंड से इफ दे नो व्हाट इज टाइम इन रेंज. तो मुझे कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, शायद मैं दूर भी हूं, लेकिन बहरहाल आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. टाइम इन रेंज is the amount of time those with diabetes spend with their blood glucose levels in a recommended target range and is represented as a percentage. समझने की बात यह है, 24 घंटों में से तकरीबन 16 से 17 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें ब्लड शुगर जो हैं वो बिटवीन 70 और 180 के दरमियान हो. ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम इन रेंज. यानी आपकी ब्लड शुगर की वो मिकदार जो कि 70 और 180 के दरमियान हो, तकरीबन वो हर 16 से 17 घंटे 24 घंटों में से होनी चाहिए. बाकी घंटों में शुगर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. अगर किसी भी पेशेंट की आपने डायबिटिक रेंज
इस रेंज में रखिए, यानी 70% ऑफ योर 24 आवर्स तकरीबन, ठीक है ना। तो व्हाट यू विल रिसीव, व्हाट यू विल अचीव इन 3 months, you will achieve a sustainable reduction in HbA1c. देखिए HbA1c आप कब चेक करते हैं? We all know that we check around every 3 months, ठीक है ना। जिनके अंदर कंट्रोल है, we check around 6 months. फर्ज करें एक पेशेंट को आपने कहा कि भाई HbA1c करा के आना, बहुत अनकंट्रोल ब्लड शुगर्स हैं, ठीक है। आपने को कहा कि आप जो है ना 3 महीने के बाद मुझे दिखाइएगा HbA1c। जब वो 3 से 6 महीने के बाद आता है तो जो उसकी 10 थी वो 11 या 12 हो गई फॉर एनी रीजंस। तो यू लॉस्ट 6 months ऑफ देयर टाइम, सिमिलरली यू लूजिंग देयर टाइम। तो अब जो है ना डायबिटिक को इसी तरह मैनेज करना है जिस तरह के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को मैनेज करते हैं, बल्कि इट्स एन इक्विवेलेंट विद दैट। डॉक्टर अली ने और डॉक्टर उमर ने यही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कार्डियोवैस्कुलर को हर वक्त जहन में रखें कि अगर आप डायबिटीज जो मैनेज करें उसकी तरह करनी है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू रियली विजिलेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पेशेंट को दवा लिखी और का 1 साल बाद आना, इट्स नॉट अ जस्टिस फॉर दैम। अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स नीड्स टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली एंड हम कोशिश करते हैं, जाहिर बात है इसमें कॉस्ट और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हमें प्रॉपर एडवाइस करनी है पेशेंट्स को, उनकी फैमिली को कि रियली रियली दे नीड इट। और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग अगर आप प्रॉपर करेंगे और वो हमें बताते रहेंगे तो आई थिंक दैट बी एक्सेलेंट। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो बताई थी कि जो ग्लूकोज टारगेट्स है, जैसे कि HbA1c आपके टारगेट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जनाब लेस देन 7% होना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। चलें, आपने कहा कि अगर तो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज HbA1c हाई है तो नीड टू मॉनिटर ब्लड शुगर्स, ठीक है। So this is one of the best management system which is recommended by ADA and NICE, that it is the target blood glucose which is moving away from HbA1c toward the how much time is spent between 70 to 180, and it's called time in range. It's calculated with the CGM on a finger blood glucose if more than 4 per day, ठीक है ना। टाइम रेंज gives a better picture of how often you have high and low blood glucose. आपको बहुत चीजों का फायदा होता है कि कितनी लो चल रही है, कितनी हाई चल रही है, ताकि आपको उसके हिसाब से ना एडवाइस करने में आसानी होती है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है 2024 की एडीए का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें दोनों की इंपॉर्टेंस को उजागर किया गया है कि दोनों बोथ आर इंपॉर्टेंट, आई मीन सीजीएम और ये टाइम इन रेंज एज वेल एज HbA1c इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चार्ट है जो कि मैंने एडीए से लिया था, एडीए की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं। इफ यू फोकस ऑन दिस हियर, यू नो, टाइम इन रेंज, ये वाला जो 0.8 है, देखिए ये रेंज के अंदर है, यानी 70 to 180 इज द रेंज। इफ एनीथिंग बिलो यू कैन से टाइम बिलो रेंज, ठीक है ना। लेवल 1 हाइपोग्लाइसीमिया और लेवल 2 हाइपोग्लाइसीमिया। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ जाएंगे मोर देन 250 कॉल टाइप 2, और अगर मोर देन 180 to 250 है तो यू कैन से कि टाइप लेवल 1 हाइपरग्लाइसीमिया है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको पेशेंट के इवेल्युएशन में अंदाजा होता है। जो सीजीएम सेंसर है वो 14 दिन तक लगता है, इसके बाद चेंज करना पड़ता है। 14 डेज वी आर ऑफ पैटर्न मैनेजमेंट, और 70% द डेटा फ्रॉम द 14 डेज। तो जब भी वो चेंज करेंगे 14 डेज में, तो आपको बताना देखेंगे आप उनके जो मीटर होता है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, कि डिवाइस के अंदर आ जाएगा कि जनाब इनके टाइम इन रेंज कैसा है। और मैं दोबारा इस तरफ जाऊंगा, ये आप ग्रीन जो बार नजर आ रहा है, इट इज टाइम इन रेंज। तो ये 70% या इससे ज्यादा, इट मीन्स अ गुड कंट्रोल। अगर तो ये कम है, इट मीन्स के जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया है। और आप जो नीचे वाला रेड बार देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट्स के अंदर ये रेड बार बढ़ा हुआ हो, इसका मतलब है कि द पेशेंट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स। हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स का मतलब ये हुआ कि जनाब पेशेंट्स की ब्लड शुगर या HbA1c आपको ठीक मिलेगा, लेकिन पेशेंट डज नॉट हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज ही गेट्स ऑफ्टन हाइपोग्लाइसीमिया which compensate the other blood sugar level, और HbA1c उसकी ठीक आएगी लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो आपको पेशेंट की सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, बल्कि आपको उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज येलो बार के अंदर आ रहा है या ऑरेंज में, इसका मतलब है कि अगर वो लेस देन 25% है तो दैट्स फाइन, लेकिन इफ इट्स मोर देन दैट तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस सिम्टम में पेशेंट की ब्लड शुगर डे टू डे बेसिस पे। और जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो खुद देखते हैं ना ये ग्लूकोमीटर और ये मॉनिटरिंग सिस्टम, उनको अंदाजा होता है कि हम कहां पे खड़े हुए हैं, वरना वो 3 महीने या 6 महीने का इंतजार करते हैं जब HbA1c होगी।
खैर मैं टाइम एंड रेंज के मुतालिक मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया. आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कंस्ट्रेंट है. टेक्नोलॉजी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल इनकॉर्पोरेट हो गया है. ठीक है, तो आजकल जो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड हुई है वो इंसुलिन पंप्स हैं, इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम है और साथ में ऑब्वियसली जो GLP-1 एनालॉग्स हैं और दूसरी मेडिकेशंस हैं वो काफी मतलब उनकी इंप्रूवमेंट हुई है. ठीक है ना. टेक्नोलॉजी के मैंने बताने कुछ चीजें बता दी. अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफली कोई ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको अट्रैक्ट करेगी और इंपॉर्टेंट भी होगी. ठीक है, ये एक स्लाइड को ध्यान में रखें. ये ब्लड ग्लूकोज जो है मॉनिटरिंग सिस्टम है. दिस इज द ब्लड ग्लूकोज सबक्यूटेनियस टिश्यूज बीइंग मॉनिटर्ड. देयर इज अ CGM सेंसर ऑन दैट एंड दिस इज द ट्रांसमीटर यू कैन सी ऑन द टॉप एंड दैट वुड बी रिसीव बाय द रिसीवर. ठीक है, तो जो रियल जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हमारे यहाँ लिब्रा के नाम से काफी अवेलेबल भी है वो है इंटरमिटेंट यानी फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम. उसको जब आप करेंगे लिब्रा 2 के अंदर तो आपको जो मॉनिटरिंग होगी वो आप देख सकते हैं और रिकॉर्ड भी होता है. जो लिब्रा 3 आया है, नंबर 3 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर वाईफाई के जरिए जो अपने मोबाइल या आईफोन के अंदर उसको सेव कर सकते हैं उसका डेटा. ये आप देखें आपको आसानी होगी और समझ भी आएगी कि हमें अपडेट रखना है अपने आप को. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट होते हैं. जब भी आपको कोई ये पैक मिलेगा ना इसका लिब्रा का, उसके अंदर ये सेंसर एप्लीकेटर है, ये सेंसर पैक है. इसको ओपन करेंगे तो सेंसर एप्लीकेटर के जरिए आप अपने आर्म में इसको लगा देंगे और ये जो सेंसर है इट विल डिटेक्ट द ब्लड शुगर एंड इट विल रिले टू द मॉनिटर्स. तो अगर किसी ने ये लगाया हुआ है तो यू कैन सी समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आप यूज कर भी रहे हैं. तो दैट इज द सेंसर विच इज बीइंग अप्लाइड नॉर्मली ऑन द आर्म्स और यू कैन से यू कैन डिटेक्ट. तो उसके जरिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है विच इज डे टू डे रियल टाइम मॉनिटरिंग आप उसके अंदर कर भी सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज दैट. जब आप इसको एनालाइज करेंगे इसके जो इंफॉर्मेशन को, देन यू विल फाइंड कि हाउ नाइसली इट इज बीन गिवन कि ये रेड ग्रीन बार जो है इसकी कितनी टारगेट रेंज है जिसको हम टाइम इन रेंज कहते हैं, कितना हाई है कितना लो है. एंड यू कैन ऑल्सो सी a beautiful graphic representation which is suggesting that the blood sugars of the patient are in acceptable range between 70 to 80. आप जो ग्रीन बार देख रहे हैं इसके अंदर ये फॉल करेगा तो उसका मतलब है कि ये चीजें हैं और पेशेंट इज इन एक्सेप्टेबल रेंज. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट हुई है मॉनिटरिंग सिस्टम में. जैसे डेक्सकॉम के जो है वो उसकी सेंसर लाइफ भी 10 days है और अभी खैर सेंसर लाइफ भी बढ़ गई है जैसे कि FDA ने अप्रूव किया है विच इज एवरसेंस को. तो इम्प्लांटेबल है जो कि 90 days तक आप इसका सेंसर स्किन में रख सकते हैं, लेकिन लिब्रा का 14 दिन में आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा. ठीक है, अब वॉचेस भी आ गई, स्मार्ट वॉचेस हैं आईफोन की एंड यू कैन सी. तो एक बहुत रिवोल्यूशनाइज हो गई है टेक्नोलॉजी में. तो हम जहां पर थे अब वहां नहीं है, हमें वक्त के साथ साथ कदम मिलाना है और जिस तेजी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वी हैव टू ट्राई अवरसेल्फ कि हम खुद भी इस नॉलेज को हमारे में मौजूद हो ताकि हम पेशेंट को बेहतर एडवाइस कर सकें. ठीक है, तो बहरहाल आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम जस्ट नाउ कमिंग टू द डायबिटीज मैनेजमेंट स्पेशली द मेडिकेशंस एंड अदर इंसुलिन थिंग्स. ठीक है, जब भी किसी पेशेंट की डायबिटिक मैनेजमेंट का प्लान करते हैं आपने पेशेंट का ग्लूकोमीटर्स भी चेक किया, उसकी ब्लड शुगर रीडिंग आपके सामने है और पेशेंट की आपने हिस्ट्री भी ली, उससे पूछा कि कोमोबिडिटीज क्या हैं, उसके और हेल्थ के क्या इश्यूज हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए. किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? पर्सन सेंटर्ड अप्रोच. तमाम गाइडलाइंस मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको एडवाइस के लिए कि क्या बेस्ट तरीकेकार है, लेकिन यू बीइंग अ फिजिशियन will decide what is best for the patient and it is called patient centered approach. Patient centered approach के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले डिटेल्ड हिस्ट्री, जैसे कि अभी हमारे दो रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को हाईलाइट किया है कि आप जो है पेशेंट का इंफॉर्मेशन जो है डिटेल इंफॉर्मेशन जरूर लें और उनके जो कोमोबिडिटीज हैं स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर, रीनल, आईज प्रॉब्लम्स, उनके मसल इश्यूज, उनकी एक्सट्रीमिटीज, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंस दें.
कोई भी पेशेंट आए प्लीज हार्ट रीनल असेसमेंट जरूर करें और पैरों को कभी ना भूलें। ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं पेशेंट्स के बड़ी अच्छी मैनेजमेंट शुरू कर दी है किसी ने, लेकिन पैरों को नहीं देखा। क्यों? पैरों पे ड्रेसिंग थी, पैरों की ड्रेसिंग नहीं खोल सके। आई थिंक दैट इज नॉट राइट। पेशेंट के अंदर एल्सर्स हो सकता है, पेशेंट जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी एडवांस एंड कुड बी अ सिग्निफिकेंट डायबिटिक फुट। इवन पेशेंट हैव अ गैंग्रीनस टो, चार्कॉट जॉइंट्स, और इतना कुछ आप देख सकते हैं एंड पेशेंट माइट नॉट बी वेल ड्यू टू द इन्फेक्शन। पेशेंट कैन हैव एन ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो प्लीज जब आप कार्डियोवैस्कुलर और रीनल असेसमेंट दें तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक द फीट। दिस इज वन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टुडे। अदर थिंग इज द हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 इंसुलिन लिखते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि वो उसकी कितनी टेंडेंसी है हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क की। एक ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर आपके पास टाइप 1 डायबिटीज के साथ आता है तो आप उसको अगर इंसुलिन लिख रहे हैं, जाहिर बात इंसुलिन लिखनी है, तो आपने उसकी रिस्क स्ट्रेटेजी क्या की है। टाइप 2 डायबिटीज में आप किसी को इंसुलिन लिख रहे हैं, वो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑन द रोड्स। हैव यू हर्ड अबाउट आस्क अबाउट द प्रोफेशन? हैव यू आस्क्ड अबाउट द हॉबीज? Have you asked about the tendency to fall, or have you asked about any previous hypoglycemic episodes requiring the third party assistance? I think they are really really important to get a hypoglycemic risk. और फिर आप सोचेंगे कि मुझे कौन सी सेफ मेडिकेशन देनी है। मैंने शुरू में कहा था सेफ्टी इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब आपको जो तीसरी चीज ध्यान में रखनी है वो वेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे भाई बड़े अच्छा बता रहे थे कि प्री डायबिटीज के अंदर वेट की कितनी कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ बच्चों की आप देखें जो तादाद है वो बहुत सारे ओबीज बच्चे हैं, और उनको अगर आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखेंगे तो इंपेयर आएंगे उनके। कितने सारे बच्चे टाइप 2 डायबिटीज हो जाते हैं वेट की वजह से, और अगर हम इनिशियल इनको मैनेज नहीं करेंगे तो दैट गोइंग टू बी अ रियली रियली बिग प्रॉब्लम एज अ नेशन एज अ होल। और थर्ड और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो रिस्क फैक्टर जरूर सोचें कि एक मेडिकेशन आप शुरू कर रहे हैं तो उसकी रीनल कंडीशन क्या है। अगर फर्ज करें कि किसी का क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 है तो यू विल नॉट स्टार्ट ऑन मेटफॉर्मिन, ठीक है ना, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिलो 30। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या कंडीशंस हैं। सेकंड, साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स। बहुत सारे पेशेंट को सल्फोनाइल यूरियाज जैसे ग्लिक्लिजाइड या और जो मेडिकेशंस हैं इससे सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसेमिया हो चुका होता है, खुसूसन एल्डरली में, लेकिन फिर भी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज प्लीज आप देखें कि अगर कोई भी पेशेंट ग्लिक्लिजाइड पे है, यानी कि सल्फोनाइल यूरियाज की कोई भी ले रहा हो, ग्लाइबिन ले रहा हो या कोई भी, और अगर उसको हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स हैं या उसको पसीना आता है या और चीजें होती हैं, तो ट्राई टू थिंक इफ इट कैन बी अल्टरनेटिव अप्रोच ऑन दैट। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आखिरी चीज है वो जाहिर बात है इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यू आर द फिजिशियन, आप माशाल्लाह बहुत ही वेल ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग में हैं, you are the person, you are the people who needs to guide the patient appropriately what is the best for that. आप सब लोगों को पता होगा बहुत सी मेडिसिन का, really I don't want to go into detail of each and everything. You heard about metformin, you heard about SGLT2 inhibitor, you heard about the GLP-1 analogs, you heard about DDP4 और thiazolidines और sulfonylureas मैंने बात की, और इंसुलिन एनालॉग्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी, आपको पता भी है। लेकिन ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट की वजह से इट्स डिफिकल्ट टू मेंशन ईच एंड एवरी मेडिकेशंस। लेकिन मेरे जो है मुझसे पहले स्पीकर्स ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बताया भी था कि SGLT2 की कितनी इंपॉर्टेंस है, इन कार्डियक रीनल डेटा बहुत ज़बरदस्त है इनका। अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो वी कैन शेयर द डेटा ऑन ऑल दिस मेडिकेशंस, तो ये हम बता सकते हैं। चंद चीज़ें जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है DDP4 इनहिबिटर्स जो होते हैं, they work by blocking action of adapted peptides for enzyme which destroy intestinal hormones called incretins. Incretins जो होते हैं they stimulate the insulin and reduce the production of the glucagon. This is बहुत beautiful इनका mechanism of action होता है, और obviously they reduce the appetite as well. तो जाहिर बात है जब आप इनहिबिटर देते हैं इंक्रेटिन ज्यादा अवेलेबल हो जाता है बॉडी के अंदर एंड हैव अ वेरी गुड इफेक्ट्स ऑन दैट। तो दैट इज सम ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन which is inhibiting the destruction of the GLP-1, inhibit करता है ताकि आपके इंक्रेटिन इफेक्ट इसके अंदर हो, इंसुलिन रिलीज हो और ग्लूकागॉन जो है रिड्यूस हो, और पोटेंशिएट द इंक्रेटिन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है डिटेल में देखने वाली चीज है, and I think improves the insulin release and also reduce the glucagon release. तो I think this is quite a good diagrammatic representation. आगे भी मैं कुछ बातें बताऊंगा GLP-1 एनालॉग्स के हवाले से।
GLP-1 has a multiple physiological effects, including increase in insulin secretion while inhibiting glucagon release. ग्लूकोगॉन कम होगा और इंसुलिन बढ़ जाएगी, बट ओनली व्हेन द ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड. तो ये जो है ग्लूकोज डिपेंडेंट, मतलब अगर पेशेंट डाइट लेता है तो डिपेंडेंट जो भी शुगर इंक्रीज होती है उसको वो काउंटर इफेक्ट करता है और ग्लूकोगॉन को कम करता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिलेइंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड डिक्रीज इन फूड इनटेक. ये इसका एडिड बेनिफिट है. Obviously, it promotes the proliferation and reduce beta cell apoptosis. हमने यही कहा था कि जनाब हमारा जो है वो पैराडाइम शिफ्ट आया हुआ है, तो वी ट्राई टू सेव बीटा सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंसुलिन टाइप 2 में इंसुलिन देने में जल्दी ना करें और कोशिश करें कि हम क्या क्या दे सकते हैं. इसमें जो GLP-1 एगोनिस्ट जो हैं उसके जो है वो HbA1c को 0.5 to 1% कम कर सकता है. वेट रिडक्शन बहुत अच्छा है उसका. और जो सेमाग्लूटाइड जो था ओजेम्पिक और वेगोवी के नाम से था, उसको तकरीबन 15% तक वेट रिडक्शन हो जाता है. इसकी मिसालें हैं लीराग्लूटाइड है, ड्यूलाग्लूटाइड है, सेमाग्लूटाइड और टर्जिपेटाइड है, जिसके मुतालिक हम बात करेंगे. ये वही चीजें जो हमने अभी मेंशन की थी. स्लो द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन, रिड्यूसेस द पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज, रिड्यूसेस एपेटाइट. अब मैं जो लेटेस्ट मेडिकेशन के हवाले से बात करूंगा टर्जिपेटाइड पे. आपने शायद नाम सुना होगा मोन्जारो के नाम से. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान और नॉट, लेकिन हम इंग्लैंड में इनको देते हैं. इट्स बीन द पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस. इट्स कॉल्ड टर्जिपेटाइड. तो ये 0.5 मिल्स इंजेक्शन में होते हैं और आप जो हैं 2.5, 5 मिलीग्राम, 7.5, 10 मिलीग्राम और डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के अंदर भी आते हैं. इट्स अ वंस अ वीकली इंजेक्शन. ठीक है. तो टर्जिपेटाइड किस तरह से काम करता है? इट इज लाइक वर्क एज GLP-1. इसका जो इंपॉर्टेंट हुआ है इनहिबिटरी पेप्टाइड भी है, गैस्ट्रोइनहिबिटरी पेप्टाइड का इफेक्ट भी है, तो विच आई जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू. जो बेसिकली बहुत ही बेसिक मैंने बताने की कोशिश की ताकि लोगों को समझ आए. तो इट डिक्रीजेस द एपेटाइट एंड इंक्रीज द satiety in the brain. In the stomach, it decreases the gastric emptying time. In the pancreas, it increases the insulin and decreases the glucagon. And in muscle, increase the glucose on uptake, improve the blood sugar. Then liver के अंदर जो है वो decrease the glucose output, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और protect the heart. ठीक है. तो ये जो टर्जिपेटाइड है, ये मंजोरो है, इट्स अ ड्यूल इफेक्ट, GIP and GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट. मेन कंबाइंड इफेक्ट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट्स हैं. GIP के और GLP के क्या इफेक्ट्स हैं? आई थिंक दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको जरा सा उसको गौर से भी देखिएगा कि what does it help? It increases the beta cell proliferation, insulin sensitivity, insulin secretion, triglyceride clearance, satiety को बढ़ाता है, lipolysis को करता है, natriuresis करता है, and ventricular contractility को increase करता है. It's a very good positive effect. और GIP के जो involvement है along with GLP, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को कम कर, ग्लूकागॉन को कम करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को करते हैं, एपेटाइट को कम करते हैं, एक्टोपिक फैट डिपोजिशन है उसको कम करते हैं, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी है उसको भी रिड्यूस करते हैं, बेटा सेल एप्रोप्रिएशन को बचाते हैं. यानी प्रिजर्विंग फैक्टर है. बहुत एक्सीलेंट मेडिकेशंस हैं ये. Now we'll come to the SGLT2 inhibitor. Really, I think this is the very good medication, especially I can say third world country or like Pakistan. उसके सबसे important ये है कि they are relatively cheaper, क्योंकि अगर आप GLP जो हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हैं, जो है अगर आप सिवाय एक के विच इज कॉल्ड रेबल्सस जो हमें यूके में यूज करते हैं, लेकिन ये जो SGLT2 है यहाँ पे अवेलेबल हैं. और जैसे कि मेरे भाई ने पहले बताया था कि ये कुछ डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं. इट माइट बी अ बिट कॉस्ट इफेक्टिव वर्जन एज वेल. एक्सीलेंट इसका काम है SGLT2 का, और आई थिंक you need to consider in most of the patients, especially depending upon what they need. So these inhibitors work in the proximal tubules of the kidney to block the reabsorption of the glucose back into the blood system, thus reducing the blood glucose levels. Is an excellent way. यहाँ से इसकी absorptions को जो है वो कम करते हैं proximal tubules से. तो होता ये कि it can get excreted through the urine. तो glycosuric effect है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब अगर किसी को UTI है तो क्या किया जाए? Frequent UTIs हैं तो आप देख सकते हैं. जेनेटल इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी फीमेल पेशेंट्स को देते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम उनको एडवाइस करें कि अगर उनको रिकरेंट या फ्रीक्वेंट जेनिटल इन्फेक्शंस हैं तो देन यू नीड टू कंसीडर इफ इट्स वर्थ स्टॉपिंग दैट मेडिकेशंस.
और इसके अलावा बहुत रेयर इफेक्ट है विच इज कैन कॉज प्रोड्यूस इज द कीटोसिस, ठीक है ना। कीटोएसिडोसिस प्रोड्यूस कर सकता है जिसको हम कहते हैं यूग्लाइसेमिक एसिडोसिस। प्रॉब्ली यू माइट हैव सीन द पेशेंट, मेरे सीनियर्स ने डेफिनेटली केसेस देखे होंगे और हमने तो काफी फ्रीक्वेंट यहाँ पे इंग्लैंड में देखे हैं कि पेशेंट दे ब्रॉट विद यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी कि हर पेशेंट को होगा, बहुत ही कम परसेंटेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इंग्लैंड के अंदर कि व्हेन वी स्टार्ट गिविंग समवन SGLT2 इनहिबिटर देन वी गिव देम द कीटोन स्टिक्स। उनको कहते हैं कि अगर आपकी ब्लड शुगर जो है तकरीबन 300 से ऊपर जाने लगे, 250 to 300, they need to check the ketones in the urine. अगर तो कीटोन सिग्निफिकेंट है तो इट मींस कि दैट पेशेंट नीड्स टू कम टू द हॉस्पिटल ताकि उनकी मेडिकेशन को देखा जाए और उनको सिग्निफिकेंट डिटोरेशन से पहले उनको सेव किया जाए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा कि व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ SGLT2 और GLP-1। दिस इज आल्सो वन ऑफ द न्यू गाइडलाइंस एडवाइस इन द ADA गाइडलाइंस 2024 कि वो पेशेंट आप डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू यू गो विद द गाइडलाइन में जाहिर बात है मेटफॉर्मिन सबसे बेसिक हमारी चीपर और गुड मेडिकेशन है, हम उसको रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोमोबिडिटीज क्या हैं, कार्डियक है तो डेफिनेटली वी विल, अगर हार्ट फेलियर है तो डेफिनेटली वी विल द SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक है ना। कोरोनरी है यू कैन आल्सो गिव GLP-1 एज वेल एंड दोनों भी आप कंबाइन कर सकते हैं अगर तो पेशेंट की ब्लड शुगर रिक्वायरमेंट है। तो SGLT2 इनहिबिटर क्या, नॉर्मल GFR, एग्जैक्ट फेवरेबल हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स हैं, लेकिन और GLP-1 जो है एटीन्यूएथेरोजेनेसिस, इंप्रूव लिपिड प्रोफाइल एंड एटीन्यूट एथेरोजेनेसिस। अभी बहुत जबरदस्त लेक्चर डॉक्टर अली का था, उन्होंने काफी एम्फेसिस दी है इसके ऊपर, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इंक्रीज सैटिस्फैक्टी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड एग्जैक्ट न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। और अब जब दोनों को देंगे किसी पेशेंट के अंदर तो यू कैन सी व्हाट आर द म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है ना। रिड्यूस प्लाज्मा ग्लूकोज, रिड्यूस एडवर्स CV इवेंट्स, increase insulin sensitivity and improve beta cell function, reduce body weight, promote natriuresis, reduce nephropathy and lower blood pressure. बस चंद स्लाइड्स हैं, इसके बाद अगर मुझे बता दीजिएगा कि जब मुझे रुकना हो तो बस आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश। सॉरी बहुत कुछ कहने को है लेकिन टाइम की कॉन्स्टेंट्स है, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, तो आई विल जस्ट गो वेरी क्विकली। एक बस मैं स्लाइड, एक दो तीन स्लाइडें देख के मैं कोशिश करूंगा कि इसको वाइंड अप करूं। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट जिसकी HbA1c 10 से ज्यादा ही रह रही है, कम नहीं हो रही डिस्पाइट ऑफ यूजिंग अदर मेडिकेशन जिसकी हमने बात की है, उसको रेटिनोपैथी भी है, आपको ब्लड शुगर क्विकली इसको बैलेंस करना है, तो ऑब्वियसली आफ्टर यूजिंग द मेडिकेशन वी जस्ट डिस्कस्ड यू कैन स्टार्ट इन टाइप 2 एज अ basal dose either in forms of the NPH which is a cheaper version or you can start some glargine if it's biosimilar insulin available। रात में एक दफा दे देंगे तो आपकी जो मॉर्निंग काफी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर ब्लड शुगर मैनेजमेंट होगी तो पता चलेगा मॉनिटरिंग के क्या कोई दोपहर में भी या रात में भी ब्लड शुगर्स इनकी ज्यादा आ रही या नहीं आ रही, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट अपॉन दैट। जो पेशेंट टाइप 1 है ऑब्वियसली उनके अंदर जो है बेजल बोलस रेजिम है। प्लीज आप एक चीज याद करें, दिस इज अनदर मैसेज। मैंने बहुत पेशेंट में जब इंडस में था तो बेचारे इंटीरियर से आते थे और उनका पता है क्या इशू था, टाइप 1 डायबिटीज यूजिंग ट्वाइस डेली इंसुलिन। उनके साथ रियली नाइंसाफी है, हमें अपना हेल्थ सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है ओवरऑल। ये इनके साथ नाइंसाफी है। इन बच्चों को जो कि टाइप 1 डायबिटीज हैं दे रिक्वायर 4 times इंसुलिन विच इज कॉल्ड बेसल बोलस regime। देयर इज नो वे ऑफ ट्रीटिंग विद मिक्स्ड इंसुलिन ट्वाइस डेली। प्लीज आप हमेशा जब भी कोई पेशेंट आए अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं यूज करें, कुछ भी करें और उनकी कोशिश करें कि दे नीड टू यूज बेसल बोलस regime। मींस यू कैन गिव द लॉन्ग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इन द नाइट टाइम एंड द रैपिड और द शॉर्ट एक्टिंग टाइम एट द मील टाइम। तो इस तरीके से उनकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल रहेगी, वरना अगर आप फिजियोलॉजी में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वी आर नॉट डूइंग गुड फॉर देम। इसीलिए 3 दफा मील्स होंगी तो 3 दफा बोलस लगेगी और बेजल इंसुलिन रात में देनी पड़ेगी इनको, ठीक है। तो बहरहाल बहुत सारी डिफरेंट regime में देखने के लिए, तो मल्टीपल ड्रग इंजेक्शंस होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है ना, और शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, तो वो आप मुख्तलिफ regimes हैं, यू कैन डू विद दैट, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअलाइज्ड नीड। कंटिन्यूस इंसुलिन इन्फ्यूजन प्लान्स हैं, अगर आप किसी सेटिंग में जहाँ पे आपको इस चीज का मौका मिलता है लर्न करने का
कि इंसुलिन पंप वगैरह डिलीवरी सिस्टम है, तो यू कैन डू दैट. मैं एक चीज बताऊंगा, ट्रेसिबा इंसुलिन विच इज कॉल्ड इंसुलिन डेग्लुडेक. I think now it's available in Pakistan as well. It is a very good insulin, which is a longer version. और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अराउंड 36 आवर्स तक होता है. बेनिफिट ये है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनका देने का ये है कि कभी वो भूल जाते हैं ना दिन में सुबह में, तो चलें रात में लगा लिया. बाकी इंसुलिन का फिक्स टाइम है, जैसे कि ग्लार्जिन है या डेटेमिर है, उनको आपको टाइम पे लगाना है ना, रात में एक दफा लगेगी. लेकिन ट्रेसिबा का ये है कि यू कैन यूज एनी टाइम वंस डेली. 8 घंटे से कम ना हो वक्फा, लेकिन आप चाहें तो अगर कोई शख्स बच्चा भूल गया सुबह में लगाना या रात में लगाना, तो सुबह में भी उसको ले सकता है. तो ये एक इम्पोर्टेंस है. अब जनाब ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं एडीए की, आप देख रहे होंगे बहुत सारी बिजी स्लाइड है. एंड प्लीज डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग. आपको सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड पे, अगर मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कोमोबिडिटीज की तरफ हैं. एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क देखना है, हाई रिस्क इंडिविजुअलाइज को आइडेंटिफाई करना है, उनका रिस्क देखना है कि 10 सालों में कितना रिस्क है. हार्ट फेलियर तो नहीं है. डॉक्टर साहब ने बेहतरीन बात की, भाई हार्ट फेलियर जरूर देखें. पेशेंट आते हैं डिफिकल्टी ब्रीथिंग के साथ, डायबिटिक होते हैं, किसी को नहीं, और हम उनको कहते हैं जनाब एलर्जी और भेज देते हैं. प्लीज चेक द हार्ट फेलियर है कि नहीं है, हम लोगों को देखना चाहिए. और सीकेडी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये है कोमोबिडिटीज का, जिसपे हम बार बार बात कर रहे हैं. तो प्लीज डोंट मिस ऑल दीज थिंग, ठीक है. आप बीच वाला जो हिस्सा है वो वेट मैनेजमेंट का है. आपको पता है कि बहुत सारी अच्छी दवाएं जो आपके साथ हैं इस वक्त, जिसके अंदर SGLT2 है और जिसके अंदर GLP-1 है, ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है. इंसुलिन जो है वो राइबात वेट गेन करवाएगी, और जब वेट गेन करवाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा. तो इसीलिए ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है. उसका वेट जरूर देखें कि क्या हो रहा है वेट के साथ, और मॉनिटर करें एवरी 6 मंथ्स, ठीक है. और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका है ग्लाइसेमिक टारगेट्स. ये एक इंपॉर्टेंट टॉक इसके ऊपर अलग से भी हो सकती है कि ग्लाइसेमिक टारगेट्स हर शख्स के इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, डिफरेंट होते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि हर एक के अलग हैं. अगर एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, अगर एज बहुत ज्यादा है, तो यू डोंट वांट अ टाइट कंट्रोल. लेकिन एक यंग पेशेंट आपके पास आता है, यू नीड टू बी हैव अ वेरी गुड कंट्रोल. आप कहेंगे जनाब मुझे प्री प्रांडियल 80 to 130 चाहिए, ठीक है. ओवर द डे इट शुड नॉट बी गो 180. फिर आप याद करें TIR को, टाइम इन रेंज को, ठीक है. यंग पेशेंट आ रहा है तो उसको यकीनन आप याद करें कि टाइम इन रेंज क्या है उसकी, अगर मौका हो तो देखें कि अगर वैसे भी आप चाहें उसकी रीडिंग्स में देख सकते हैं कि वो उसकी जो ब्लड शुगर जो है, हाउ मेनी टाइम्स दे आर बिटवीन 80 and 90, ठीक है. तो बहरहाल ये आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स, आई ऑलरेडी सजेस्टेड यू. एक ये सेमाग्लूटाइड रेबेल्सिस के नाम से है, ये अप्रूव्ड है बाय FDA. इट्स एन oral semaglutide, right? It is available in England, in European countries, and also in the US. And I used to use as well these for the patients, you know, जो लोग नीडल फोबिक होते हैं और नहीं देखना चाहते, ठीक है. तो बहरहाल ये तमाम मेडिकेशंस है जिसके मुतालिक ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये ओज़ेम्पिक मतलब ड्यूलाग्लूटाइड के नाम से है, और मेरे ख्याल से मैनी ऑफ यू बीन ऑलरेडी यूज विद दैट, ठीक है. तो दे आर ट्रूलिसिटी ड्यूलाग्लूटाइड बहुत अच्छी है, मैंने काफी इस्तेमाल किया जब पाकिस्तान में था, तो काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं इसके भी, ठीक है. ज़ेल्टॉफी भी है. बहरहाल आई डोंट वांट टू गो इन्फॉर्मेशन के लिए, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेग्लूडेक एंड लिराग्लूटाइड, ठीक है. तो और इंसुलिन पेन में बहुत ज्यादा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुई है. आई मीन यू कैन सी सोफिस्टिकेटेड पेन्स हैं, मुख्तलिफ पेन डिवाइस आ चुके हैं. तो रियली समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक रीयूजेबल पेन्स भी हैं. आई डोंट वांट टू गो, इट्स एक पूरी सेपरेट टॉक चाहिए. फियास पे एक बताना है जो आपको पता होनी चाहिए कि FDA एक्सपेंडेड द यूज ऑफ फियास, ठीक है ना. ये एस्पार्ट इंसुलिन है और ये बच्चों में, जो छोटे बच्चों में लगाई जा सकती है. इस इंसुलिन की खास बात ये है कि छोटे बच्चे हैं ना, वो खाना अगर नहीं खाएं तो पता नहीं होता वालिदैन को खाएंगे कि नहीं, तो खाने के बाद भी लगाई जा सकती है. बहुत क्विकर एक्शन है इसका. आई थिंक इन सेकंड स्टार्ट कर देती है काम. तो ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि ये भी अवेलेबल है फियास के नाम से, एस्पार्टेड इंसुलिन है, ठीक है. और डेग्लूडेक और एस्पार्ट का कॉम्बिनेशन आया है राइजोडेक के नाम से. आई थिंक फ्यू ऑफ माय कॉलीग्स और द सीनियर कॉलीग्स और द जूनियर दे माइट हैव यूज्ड राइजोडेक के नाम से आती है. इसकी भी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं. आई डोंट वांट टू गो राइट नाउ इनटू दैट वन. बस आपको आखिरी स्लाइड दिखानी है तो आपको पता हो कि इंसुलिन पंप जो है उसके अंदर ये इंसुलिन पंप होता है, और ये आप देख रहे हैं कि जनाब ये कनेक्टर के जरिए
इसकी इंसुलिन इंजेक्ट की जा रही है। अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है, हर चीज में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। क्लोज लूप पंप है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हाईली सोफिस्टिकेटेड है। सिर्फ एक स्लाइड दिखाने के बाद आई थिंक आई एम गोइंग टू वाइंड अप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। and it will the device, it will detect and give the insulin by itself. तो ये आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्लोज सूप अवेलेबल है एंड वी आर यूजिंग इन यूके एज वेल। आई थिंक इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी और बस मैं इतना ही कह के अपनी टॉक एंड करूंगा। आई एम रियली सॉरी कि मेरी कुछ थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्यादा कह गया, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी चीज़ों को शेयर कर सकूं एंड आई होप दैट विल बी बेनिफिट फॉर माय जूनियर कॉलीग्स एंड सीनियर कॉलीग्स एज वेल। थैंक यू। Thank you, Dr. Abdul Shakur. Very nice talk, very elaborative about the advancement in the diabetes mellitus. Now we are toward the end of the session. Question answer session अगर कुछ पूछना चाहते हैं, 3 टॉपिक्स थे हमारे, प्री डायबिटीज बाय डॉक्टर उमर सुल्तान, मैनेजिंग हार्ट डिजीज़ बाय डॉक्टर अली रजा एंड एडवांसमेंट इन डायबिटीज मेलिटस बाय डॉक्टर अब्दुल शकूर। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछना चाहें ऑडियंस में से। एनी क्वेश्चन? यूरिया का होता है डॉक्टर उमर सुल्तान में, अब क्रोनिक सिस्टाइटिस जिसको होता है जी जी, क्रोनिक सिस्टाइटिस जिसको होता है उससे भी फ्रीक्वेंट पॉलीयूरिया हो रहा होता है, वो बार बार वॉशरूम में जा रहा होता है, तो वो यूरिन की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि हम उसे कैटेगराइज करें कि आइदर इट इज ड्यू टू प्री डायबिटिक सिचुएशन और आइदर इट इज ड्यू टू सिस्टाइटिस, क्रोनिक सिस्टाइटिस। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो क्रोनिक सिस्टाइटिस का पेशेंट है ना, वो सिर्फ पॉलीयूरिया के साथ नहीं आएगा, वो डिसयूरिया के साथ आएगा, अर्जेंसी के साथ आएगा। ये पॉलीयूरिया है, मेटाबॉलिक जो कॉज होगा वो नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया भी हो सकता है, डे टाइम भी हो सकता है। मोस्टली नॉक्टर्नल होता है, एटलीस्ट 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स पर नाइट जो होता है ना, उसको हम पॉलीयूरिया कहेंगे। जो सिस्टाइटिस है वो डिफ्रेंशिएट करेगा, वो आप उसकी हिस्ट्री से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो डिसयूरिया के साथ है, अर्जेंसी के साथ है, एज रिलेटेड है या बीपीएच के साथ है ना, तो इस तरीके से आप उनको डिफ्रेंशिएट आप इसमें कर सकते हैं।